Hello children. In continuation with the previous topic, we will be moving towards next topic, that is nitrogen fixation. As you know children, there are two ways by which we can fix atmospheric nitrogen. Number 1, you can say number 1, what atmospheric fixation? Okay, with the help of this atmospheric fixation process, during lightning, that nitrogen present in the atmosphere will be converted into nitrogenous compounds. Okay, nitrogenous compounds. And nitrogenous compounds are what? In the form of nitrite, in the form of nitrate. So, some portion of nitrogen present in the free form of nitrogen in the atmosphere that will be converted during lightning into nitrogenous compounds, and these are what? Nitrite and nitrate. Means we have got these nitrogenous compounds naturally through lightning process. And the next way of atmospheric nitrogen fixation is biological fixation. So children, you have to know first of all what is biological fixation. Means some livings are fixing here the free form of atmospheric nitrogen present in the atmosphere, that is done by help of plants. So you know plant is a living. Okay, so biological fixation. Bio means livings. In the body of plants there are another living things are present. Those are called rhizobium bacteria, blue-green algae, nostoc and amina. These are the name of different nitrogen fixing bacteria. With the help of these nitrogen fixing bacteria, that free form of atmospheric nitrogen that will be converted into nitrogenous compounds. Okay, here you can see, suppose this is a plant. Okay, so this is plant, and these are what? These are roots. And here you will see these structures. Okay, these are the round structures, and these you can say, these what you can say? Yes, these you can say root nodules. Okay, these are the root nodules present within the roots of the plant. I am making here some other root nodules. So you can see these type of round structures present within the roots of the plant. These are called root nodules. Okay. Now what will happen within these root nodules? Here I will make you a large one. Okay, here you can see these dotted portion. You can consider these are rhizobium bacteria. Okay, rhizobium bacteria. Now what will happen here? When nitrogen
is present in the soil. Suppose this plant roots are inserted in the soil. So within the soil here nitrogen is present. Okay, with the help of these rhizobium bacteria, this nitrogen, free form of nitrogen, that will be converted into nitrogenous compounds again. Okay, nitrogenous compounds. Okay, nitrogenous compounds means the compounds which the living organisms or plants can use. Okay, so this nitrate is present or will be converted by these rhizobium bacteria or Nostoc anaerina with the help of nitrogen fixation process into nitrate, or you can say usable form. Okay, usable form. Then next, what will happen if we get nitrogenous compounds? Here, this nitrogen is getting converted into nitrate form or usable form, and that will be moving. Here you can see that will move towards where? Plants. Within the roots, you know what is that root system having? Vessels or empty xylem capillaries are there. With the help of these capillary system present within the roots, that nitrogenous compounds get sucked up by the roots. Okay, roots के थ्रू क्या है, पूरी जो नाइट्रेट है या नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं ये रूट्स में मूव करेंगे, और उसके बाद में आपको पता है कि पूरे प्लांट बॉडी में जहाँ जहाँ रूट्स गई हुई हैं, स्टेम, रूट्स, लीव्स की वेन्स सब अंदर से कैसी होती हैं? सब एम्प्टी या हॉलो होती हैं। इवन जो अंदर से वेन्स होती हैं, ये वेन्स होती हैं, इनमें से क्या है आपको सबको पता है, रूट्स में जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जाइलम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, स्टेम में भी। ठीक है, एंड और लीव्स में आपको पता है फ्लोएम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, फ्लोएम सेल्स। And what are these xylem and phloem cells? You know very well. These are the vascular tissue system. And vascular tissue system means इनमें से पूरा वाटर और न्यूट्रिएंट सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और पूरे प्लांट बॉडी को सप्लाई हो जाता है सॉइल के थ्रू और रूट्स की हेल्प से। ठीक है, और फिर जब प्लांट्स के लीफ वाले पार्ट में, और लीफ वाले पार्ट में आपको तो पता है यहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है, और फूड भी पूरे प्लांट को चाहिए, तो खाना पानी दोनों ही चाहिए होता है, तो दोनों ही यहाँ इसको मिल जा रहा है। ठीक है, तो लीफ से बाकी बॉडी पार्ट्स में क्या सप्लाई हो रहा है? फूड फ्लोएम सेल्स के थ्रू, और रूट से बाकी बॉडी पार्ट्स में लीव्स तक क्या सप्लाई हो रहा है? न्यूट्रिएंट और वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे ये दोस्त मौजूद हैं जिनको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है ना, तो राइजोबियम बैक्टीरिया इन गांठों के अंदर, या जिनको हम रूट नोड्यूल्स बोल रहे हैं, इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और रूट्स कहाँ पे इंसर्टेड रहती हैं? सॉइल में, और सॉइल में मिक्स रहती है, यानी कि अवेलेबल रहती है नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में। अब प्लांट्स क्या है, नाइट्रोजन को डायरेक्ट फॉर्म में तो कोई नहीं लेता है, ना हम रिसीव कर पाएंगे, ना हम डाइजेस्ट कर पाते, ना प्लांट्स। पहली बात तो नाइट्रोजन जो
N2 के फॉर्म में प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, वो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकती, इतनी बात आप समझ लो। तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, यानी कि यूजेबल फॉर्म में। जब यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इन रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट बैक्टीरिया की हेल्प से, तो फिर वो कहाँ प्लांट्स की रूट्स के थ्रू क्या किया कर लिया जाता है, सक कर लिया जाता है, और पूरे प्लांट बॉडी को नाइट्रोजन इस तरह से अवेलेबल हो जाती है। यू नो चिल्ड्रन, नाइट्रोजन इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए भी है जितनी प्लांट्स के लिए। बट जब प्लांट्स ने रूट नोड्यूल्स की हेल्प से कन्वर्ट करके नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में नाइट्रोजन ले ली, ठीक है, अब ऐसे पहुंच गई। अब हमारे तक कैसे पहुंचेगी ये भी आपको कहानी पता है कि हमारे तक जब हम इनके प्लांट पार्ट्स को खाएंगे या प्लांट से बनी हुई चीज़ों को खाएंगे तो हमारे बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में सबके पास नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाती है, राइट। अब चलते हैं बच्चों, इतनी चीज़ आपने बेसिक समझ ली, अब हम समझते हैं नाइट्रोजन साइकिल क्या है, ठीक। एक बार और जान लो, अब जैसे थंडरिंग और लाइटनिंग होती है ना एटमॉस्फेयर में, उस समय भी क्या है, उसमें एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रहती, नाइट्रोजन तो अवेलेबल होती है, दोनों के साथ में रिएक्शन होता है और क्या बना देता है, नाइट्राइट, और नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्जन हो जाता है और ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन हो जाता है। और दूसरा क्या फिक्सेशन है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायो मीन्स लिविंग्स इन्वॉल्व हैं, और लिविंग्स कौन है, एक तो बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट हैं रूट नोड्यूल्स में, और दूसरे प्लांट भी क्या है, लिविंग है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन। अब बस इनको अपनी मेन चीज़ मिल गई, और क्या चाहिए, बल्ले बल्ले, राइट। अब चलते हैं हम लोग नाइट्रोजन साइकिल की तरफ, ठीक। चलो देखो, नाइट्रोजन साइकिल आपको पता है बच्चों कितनी प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, सबसे ज़्यादा अमाउंट 78%, और ये 78% नाइट्रोजन अवेलेबल होती है। इसका रेशियो क्या रहता है एटमॉस्फेयर में, मोर और लेस कांस्टेंट रहता है, कम या ज़्यादा मतलब कैसे जितना भी रहेगा वो क्या है, बार बार रिसाइकिल होके एटमॉस्फेयर में 78% किसी न किसी तरह पहुंचता रहेगा, ठीक है। अब देखो, यानी कि कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है। और अब यहाँ पे चलते हैं, ये आपने देखा बच्चों, साइकिल का पहिया क्या करता है, गोल गोल घूम के जहाँ से शुरू होता है वहीं पे वापस रुकता है, ठीक है ना, फिर वहाँ से शुरू हो जाता है। अगर आप कंटिन्यू चलाते रहोगे साइकिल को, साइकिल का पहिया का काम क्या है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, घूमता रहेगा, और आप अपने घर तक पहुँच जाओगे। वही चक्कर यहाँ पे है कि नाइट्रोजन जब क्या होती, साइकिल चलती रहती है, साइकिल का काम ही गोल गोल क्या है, घूमना, ठीक है। अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। आपको पता है नाइट्रोजन N के फॉर्म में कभी नहीं रहती है, N मिला के क्या बना देता है, N2 बना देता है, ठीक है। तो इस तरह से इंडिपेंडेंट हो जाती है, अवेलेबल रहती है, नहीं तो उसको कोई ना कोई साथ पकड़ने के लिए चाहिए होता। आपको पता है एटम्स मॉलिक्यूल्स पढ़ाया आपने केमिस्ट्री में, राइट। अब वहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, यहाँ आ जाओ। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है, यानी एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में क्या है, ये बादल है, ठीक है, समझ लेना ये बादल है। बादल में कितनी परसेंट, 78% है। हमें परसेंट से कोई मतलब नहीं, हम पढ़ रहे हैं क्या, साइकिल, ठीक है। अब देखो, पहले हम क्या लेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा करेंगे, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन होगा। और ये एरो जो बना रही हूँ मैं, इसको देखो दूसरा कलर कर देते हैं, राइट। देखो एरो एरो पे चलते जाना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, फिर ये एरो पहुँचो, क्या हुआ यहाँ पे बॉक्स में, लाइटनिंग, बड़ा कर देते हैं, क्या हो रहा है, लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन,
ठीक है। अभी इतना पार्ट छुपा देते हैं आपको, जो चीज़ चाहिए बस इतनी आप समझो, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं, राइट। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, फिर एरो ऐसे लगाओ, ये नाइट्रोजन का क्या हुआ, लाइटनिंग हुई, लाइटनिंग के टाइम पे यही नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गई, ठीक है, किस में, कम, ये देखो अब इसके बाद में ये जो चला आ रहा है एरो ऐसे कहाँ पहुँचा, ये पहुँचा यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। अब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ था, नाइट्रोजन किसमें, नाइट्राइट, देन नाइट्रेट, और नाइट्रेट क्या है, ये कंपाउंड है एक तरह से, ठीक है, नाइट्रोजनस कंपाउंड बोल सकते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये पहुंच गया सॉइल में, ठीक है, नाइट्रोजनस कंपाउंड के फॉर्म में। अब इसका क्या हुआ, ये ले लिया गया, सॉइल में पहुंच गया, ठीक है, यहाँ तक सॉइल में पहुंच गया एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन के थ्रू, लेकिन उसके बाद और चाहिए होती नाइट्रोजन, और चाहिए होती, उसके लिए हम आपको दूसरा प्रोसेस पर बताएंगे। अब हम इतनी नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो यहीं पे छोड़ देते हैं इसको, एक और प्रोसेस, दूसरा तरीका है। एक तो हमने ये आपको बताया था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग के थ्रू फिक्स होती है नाइट्रोजनस, ये वाले नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, राइट। अब दूसरा एक हमने बताया था आपको बायोलॉजिकल कंपाउंड। अब ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, इसको कौन कन्वर्ट करेगा, कौन इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज करेगा, वहाँ होते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर हो रहा है बायोलॉजिकल फिक्सेशन, ठीक है ना। तो ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन हो गया, और बायोलॉजी का बायो का ही मतलब होता है लिविंग्स के द्वारा, प्लांट्स और उस बैक्टीरिया ये लिविंग्स हैं, तो इसलिए बायोलॉजिकल हो गया। अब इस वाले, ठीक है, नाइट्रोजन को, इस वाले नाइट्रोजन को कौन फिक्स करेगा, एक तो प्लांट्स हैं साथ में, प्लांट्स के अंदर रूट्स हैं, और रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हर रूट में प्रेजेंट होते हैं कुछ रूट नोड्यूल्स, और उन रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे दोस्त जिनको बोलते हैं बैक्टीरिया। ये देख रहे हो ना, ये वाला डायग्राम, ये आप देख लो अच्छे से, ये रूट नोड्यूल्स हैं, ये रूट्स हैं, ये पूरा प्लांट की रूट्स हैं, ठीक है। तो सब कुछ बायोलॉजिकल हो रहा है, अब इतना ही समझो। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक ये एरो आ गया, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। अब क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स में ये अगेन बना देते हैं, ये रूट्स हैं, रूट्स के अंदर क्या है, ये जो है ना रूट नोड्यूल्स हैं, ठीक, नोड्यूल्स हैं, और रूट नोड्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं। तो ये साथ में क्या करते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, ठीक है। अब इसके बाद में ये एरो जाओ, क्या बन गए, यहाँ से जो भी थे प्लांट, रूट, नोड्यूल्स, उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया, उन्होंने सबको फ्री फॉर्म में जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन अवेलेबल थी उसको कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, ठीक है। और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स किस में फिर मिक्स हो जाएंगे, सॉइल में, यानी कि सॉइल में ही तो फ्री फॉर्म में थी, उसको नाइट्रोजन न रह के क्या बना दिया, नाइट्रोजनस कंपाउंड बना दिया, किसने, बैक्टीरिया ने, राइजोबियम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी ने, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये जो एरो गया है, अब हमें फाइनल जो चाहिए था नाइट्रोजनस कंपाउंड, ठीक, यूजेबल फॉर्म में जिनको प्लांट ले सकते हैं, तो उनको फिर किसने, अपटेक बाई प्लांट्स, अपटेक बाई प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स ने, प्लांट बॉडी को सप्लाई हो गया, ठीक।
हमने बताया था आपको, रूट्स तक कर लेती हैं पूरे न्यूट्रिएंट को, वाटर को, सब, और पूरा प्लांट बॉडी को सप्लाई हो जाता है। वो अपटेक बाई प्लांट के द्वारा खा लिया जाता है या सप्लाई हो जाता है। वैसे खाते हैं क्या? नहीं, रूट्स के द्वारा सप्लाई हो जाता है जाइलम सेल्स के थ्रू, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ चलो, ये देखो किसने लिया, प्लांट्स तक पहुँच गई नाइट्रोजन, और प्लांट्स को जब खाया एनिमल्स ने, ठीक है, एनिमल्स ईट प्लांट्स, तब क्या हुआ, यहाँ आ जाओ, तब नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, क्या हुआ, नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं एनिमल्स, प्लांट्स भी जब डेड हो जाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में, डेथ और एक्सक्रीशन प्रोसेस से क्या होता है, वही नाइट्रोजन जो नाइट्रोजनस कंपाउंड के फॉर्म में एनिमल्स में, प्लांट्स में थी, अब वो डेथ और के बाद में और एक्सक्रीशन के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, और फिर वापस अब ये एरो यहाँ बनाओ, इधर से इधर गए, इधर से वापस यहाँ जाना है हमें। अब ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, ठीक, कहाँ मिल गए, सॉइल में, देखो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, वापस मिल गए, और वहाँ से अगेन कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो वापस गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, बस फिर क्या था, अब वापस नेचर में, देखो ये रो ले जाओ, वापस नेचर में ये नाइट्रोजन पहुंच गई, पूरी कंप्लीट साइकिल हो गई। एक बार फिर रिवाइज कर लो फटाफट। देखो बच्चों, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हम यहाँ शुरू करेंगे, ये रो लाइटनिंग के दौरान क्या है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गई, कंपाउंड से फिर यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक नाइट्रोजन फिक्सेशन लाइटनिंग के थ्रू, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन बोल सकते हैं इसको, और दूसरा बायोलॉजिकल फिक्सेशन में ये रो बनाओ, और फिर क्या है, नाइट्रोजन फिक्स किया राइजोबियम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी ने, और फिर ये बैक्टीरिया क्या नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, मिट्टी में मिक्स हो गए, और अब दोनों जगह से, यहाँ से भी यहाँ से भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गई नाइट्रोजन, और फिर क्या है, इसको अपटेक कर लिया, ले लिया जाएगा प्लांट्स के द्वारा, यानी कि प्लांट्स इसको सप्लाई कर देंगे पूरे बॉडी में, और फिर प्लांट्स को जब एनिमल्स खाएंगे, और जब एनिमल्स और हम लोग प्लांट्स को खाएंगे, उसके बाद क्या होता है, वापस जब लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है, और सबसे पहले अगर एक्सक्रीशन करता है प्लांट्स या एनिमल, एक्सक्रीशन प्रोसेस से, ठीक है, एक्सक्रीशन का मतलब जानते ही हो, रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, तो एक्सक्रीशन, और जब डेड हो जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, वापस सॉइल में पहुंच जाते हैं और नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर क्या है, दोबारा कहाँ, सॉइल में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स मिल गए, और जब नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को वापस वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं सॉइल में कुछ बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, गैसियस फॉर्म में, और ये फिर वापस यहाँ नाइट्रोजन जो मिल गई है, ये फिर वापस उड़ जाती है कहाँ, एटमॉस्फेयर में, और पहुँच गई दोबारा जहाँ से आई थी वहाँ पर। तो एक आपको ये साइकिल पूरी लगती है ना, गोल गोल जहाँ से चली थी वापस वहीं नाइट्रोजन पहुँच गई। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट नाइट्रोजन साइकिल, एंड दिस चैप्टर आई थिंक इट इज़ फिनिश्ड। सो बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया तो बढ़िया सा कमेंट करना, ओके। अब चलो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस कर लेंगे, राइट।